because of waiver. As I said, the total number of the farmers who are benefited because of waiver is 3 crores and something 90 lakhs or 85 lakhs. As for what I recollect, total number of farmers in this country are 12 crores. Out of that, 3 crores are defaulted. And those who are defaulters, they are not getting any type of loan from any institution or cooperative institution or bank. So these waivers has definitely come to their rescue, and these defaulters now become eligible to get loan. The rest of the 3 crores, they are the regular, they are not defaulters. They are taking money from either cooperative banks or majority from nationalized bank or scheduled banks. So as per my information, there are about 6 crore farmers who are taking advantage of various type of financial institutions who are supplying agricultural credit, and rest of the farmers don't go to anybody, might be going to the private saukars, money lenders. So this is a figure which I recollect. These particular 2 references which I have made, he should give all these details to me. I am ready to go in detail about that. मुलायम सिंह जी ने दूध और गेहूं के भाव के बारे में बात कही। जहां तक गेहूं का भाव पिछले साल तय किया था, CSCP ने जो रिकमेंड किया था, CSCP के रिकमेंडेशन में भारत सरकार ने और कैबिनेट ने इम्प्रूवमेंट किया, और इसलिए वी हैव टोटली एक्सेप्टेड CSCP, नॉट ओनली एक्सेप्टेड बट वी हैव इम्प्रूव। जहाँ तक दूध का भाव है, भारत सरकार दूध के भाव तय नहीं करती, क्योंकि जब हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब तय करते हैं, तब हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने के बाद इसके नीचे जब कीमत जाती है, देन गवर्नमेंट हैज़ टू एंटर इन मार्केट. वी आर नॉट केपेबल to purchase, procure milk throughout India. That is impossible for any government, particularly for government of India. And that's why we don't fix milk prices. State government decide milk prices according to availability. राजनाथ सिंह जी ने कुछ सवाल यहाँ उठाए. एक तो सबवेंशन के लिए प्रोविजन पूरी ने इस तरह के सुझाव उन्होंने दिए. ये बात सच है कि सबवेंशन के लिए जो हमने डिसीजन ले लिया और जो हमारी रिक्वायरमेंट है, इससे प्रोविज़न कम है, मगर बीच में हमने इस बारे में फाइनेंस मिनिस्टर साहब के साथ डिटेल डिस्कशन किया है, एंड ही हैज़ कमिटेड, ही हैज़ एश्योर्ड अस कि वट एवर द डिसीजन हैज़ बीन टेकन दैट एडिशनल मनी विल बी प्रोवाइडेड, सो देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम. Secondly, about the taxes for these cooperative banks. In fact, it's not proper for me to discuss tax proposal here, but whatever the general views, whatever the views of the those who are in cooperative movement, that their view I have already communicated to Honorable Finance Minister, but taxation जहाँ तक इंश्योरेंस की बात है, ये बात है कि जिस previous government has taken decision to introduce a farm insurance. After that, one committee was appointed, and that committee was told to go in details and consult the state government's view also about this. The report which he has submitted to Government of India, इसमें एक बात है कि that regarding this pilot project on farm income insurance scheme, majority of the states were not keen to implement the scheme as yield and the price have offsetting behavior, and that is one of the reasons which they have not accepted. Second point which they have said, some of the states were of view that the guaranteed income was not attractive since the market price of the superior varieties grown never below MSP. That's why they have that reason also they have given. And thirdly, non-availability of the past and also current data at implementation level was also hindrance for the smooth implementation of these schemes. So these 2-3 reasons which was communicated by state government, and they have not shown interest. That's why this scheme was pilot scheme that has been stopped and the new scheme has been introduced.
only one problem about new scheme is that Government of India wants village should be unit. As today, Tehsil or district. In fact, Tehsil or district unit, this concept doesn't give justice to the farmer. कुछ गांव में बारिश होता है, कुछ गांव में होता नहीं, उसी तहसील में, इसी ब्लॉक में, और इसका बेनिफिट नहीं किसानों को मिलेगा तो कोई इसका फ़ायदा नहीं होता। इसलिए विलेज करने की आवश्यकता है। अल्टीमेटली उस किसान का खेत पकड़ने की आवश्यकता है, मगर इसके लिए क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस की जो आवश्यकता होती है, ये क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास है। और राज्य सरकार का सबका कहना है कि हमारे पास बिल्कुल मशीनरी नहीं कि हर किसान की क्रॉप कटिंग की एक्सपेरिमेंट लेना और आपको इस बारे में सुझाव देना। इसकी तैयारी स्टेट गवर्नमेंट की नहीं। फिर भी ये ठीक तरह से अमल करने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक मीटिंग बुलाने की बात तय हुई है, इसमें हम ये बात करेंगे। साथ साथ जो इंस्टॉलमेंट है, इसमें आज 50% जिम्मेदारी भारत सरकार की है, 50% जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, जो राज्य सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। ये भी बात चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में डिस्कस की जाएगी और इसमें कुछ न कुछ कदम उठाए जाएंगे। ये दो इश्यू रिजॉल्व करने के बाद जो आज की स्कीम है, इसमें जो कुछ कमियां हैं वो दूर करने के लिए हम शायद कामयाबी मिल सकते हैं। तीसरा सवाल उन्होंने जो एक्विजिशन के बारे में किया, ये बात सच है कि मंत्रिमंडल ने एक मेरे अध्यक्षता पर लैंड एक्विजिशन के बारे में एक कमेटी अपॉइंट की थी। इस कमेटी की एक रिकमेंडेशन ऐसी है कि जहां एक से ज़्यादा फसल आता है, ऐसी कोई भी ज़मीन एक्वायर नहीं करनी चाहिए। जो बंजर ज़मीन है, इस तरह की ज़मीन एक्वायर करने की आवश्यकता है। और इसलिए जो कानून सदन के सामने है, इसमें और कोई सुधार करने की आवश्यकता है। और जहाँ तक मुझे याद है कि कल ही मंत्रिमंडल की मीटिंग है, इसमें ये इशू रखा है, जिस पर अंतिम डिसीजन अल्टीमेटली कैबिनेट लेगा और वो डिसीजन जो होगा सदन के सामने आ जाएगा। वो लास्ट स्टेज में है, इतना मैं कहना चाहता हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में उन्होंने जो सवाल थे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की पॉलिसी भारत सरकार ने बनाई है, इसमें जो कुछ सुविधा देनी है, जो कुछ सब्सिडी देनी है, इसके भी इसके डिटेल अभी मेरे पास नहीं है, मगर मैं उनको लिखित स्वरूप में ये बात जरूर उनके पास भेजूँगा। उन्होंने और एक इम्पॉर्टेंट बात कही थी रिगार्डिंग दिस कोऑपरेटिव मूवमेंट। एक है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट में ये बात सच है कि वहाँ चुनाव ठीक समय पर होते नहीं, कभी कभी पॉलिटिकल राजकीय हस्तक्षेप होता है और इससे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन ठीक चलाने के लिए एक रुकावट आती है। और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक बदलाव करने की बात, संविधान में दुरुस्ती करने का प्रस्ताव हमने पिछले सेशन में राज्यसभा में वो प्रपोजल रखा है। और ये मुझे विश्वास है कि इस साल कभी न कभी तो मौका मिलेगा और लोकसभा और राज्यसभा में ये संविधान में परिवर्तन करने की आवश्यकता का स्वीकार हो जाएगा, तो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा फ्रीडम मिलेगा। इलेक्शन समय पर लेने की जिम्मेदारी उनके ऊपर रहेगी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करने का जो अधिकार राज्य सरकार को है, वो अधिकार राज्य सरकार को रहेगा नहीं। जनरल बॉडी के जो मेंबर्स हैं उनको पावर्स मिलेगी। ये सब सुझाव ये कोऑपरेटिव एक्ट में दिए हैं और ये सदन के सामने गोहत्या के बारे में उन्होंने पूछा था, उसका जवाब नहीं, गोहत्या का सामने आज सब्जेक्ट हमारे पास नहीं। और इसमें हमारी बात साफ है कि किसान जो संभाल नहीं सकता, ये बोझ किसान के सिर पर डालना, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। जो किसान संभाल सकता है ठीक है, तो उन्होंने संभालने की आवश्यकता है, मगर आप किसी को बैन करेंगे और जिस किसान को अपना परिवार चलाना मुश्किल होता है, उसको 4 या 6 जानवर संभालने का पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर देनी कानून के मुताबिक, ये मुझे लगता है कि इनके लिए फायदे की बात है। जो कुछ करना है, कोई किसान इस बात को पसंद नहीं करेगा, चाहे गाय कितनी भी बूढ़ी हो जाए, उस गाय की हत्या की जाए, इस देश का कोई किसान इसे पसंद नहीं करेगा। ठीक है, तो नहीं करेगा तो वो संभालेगा। इसमें कोई हम तो ना नहीं बोलते संभालने के लिए, मगर हम इसमें कानून के माध्यम से रोक लगाने के लिए मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूँ। जहाँ तक राजीव रंजन जी ने जो बात की, उनको विरोधाभास लगा, तो बात ऐसी नहीं। मैंने जो ब्राज़ील की बात की कि ब्राज़ील में जब चीनी को ज़्यादा कीमत मिलती है, उनकी जो मिल है, एक तो उनकी मिल की कैपेसिटी, क्रशिंग कैपेसिटी 35,000 टन की है। हिंदुस्तान में मिल की क्रशिंग कैपेसिटी एवरेज 2,000 टन की।
तो 35,000 टन कैपेसिटी पर डे क्रशिंग करने वाली मिल, उसमें दो व्यवस्था है। एक एक्सक्लूसिव चीनी बनाना या एक्सक्लूसिव इथेनॉल बनाना। जब इथेनॉल का मार्केट अच्छा होता है वो चीनी का कारोबार बंद करते हैं, इथेनॉल बनाते हैं। जब इथेनॉल चीनी की कीमत ज़्यादा होती है तब इथेनॉल का कारोबार बंद करते हैं, चीनी का कारोबार शुरू करते हैं, उत्पादन शुरू करते हैं। अपने यहाँ ये स्थिति हो नहीं सकती, क्योंकि एक चीनी की कीमत अपने देश में कभी अच्छी बड़ी होती है, कभी अच्छी होती है, कभी खराब होती है। और किसानों को मिनिमम प्राइस देने की जिम्मेदारी आज सरकार के ऊपर है। ब्राज़ील में खेती, गन्ने की खेती करने वाला जो आदमी है वही मिल का मालिक है, और इसलिए इसकी जिम्मेदारी अलग है। वो खुद की मिल है, खुद की खेती है, इसलिए उनको वो समस्या नहीं। आज हिंदुस्तान में गन्ना पैदा करने वाला किसान अलग होता है, चीनी मिल चलाने वाला अलग होता है, और इसलिए भारत सरकार स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस जो तय करती है वो मिल को उनको देनी ही पड़ती है। और वो इससे शायद इथेनॉल हमेशा करना ये फायदे की बात नहीं होगी, और इसलिए भारत सरकार ने कॉन्शियस डिसीजन ले लिया कि जो वेस्ट है मोलेसिस है, इससे आप इथेनॉल बनाओ, और जूस है शुगर केन का, इससे चीनी बनाओ। मगर आप जो चाहते हैं, मैं 2 साल या 3 साल के लिए बिहार सरकार को इजाज़त देने के लिए तैयार है कि आप इथेनॉल के प्लांट बनाकर 3 साल चलाकर दिखिए, नुकसान हो जाएगा तो फिर हमारे पास मत आइए। ये ठीक है, तो ठीक है, हमें लिखित सरकार को लिखने के लिए हमें कहिए, ऑन दिस गारंटी इफ द बिहार गवर्नमेंट इज रेडी टू गिव मी इन राइटिंग, आई एम रेडी टू कंसिडर फॉर 3 years and ready to give exemption, let them exempt. और regulatory price के CACP is there. I don't want to say anything. Generally we always accept CACP's recommendation and interest. नहीं, इसमें ऐसा है कि इस देश में जो किसान कर्जा लेता है, क्रेडिट लेता है, इसमें 70% क्रेडिट इज फॉर क्रॉप, एंड व्हेन ही टेक 70% क्रेडिट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर क्रॉप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन दैट बर्डन। 30% investment credit, which might be for rail, might be for tractor and others, there NABARD is supplying money at 8% because NABARD is raising money from market, and then they are paying this money to farmer or institutions. That's why it is not possible for Government of India to take that responsibility. Crop loans responsibility which we have taken, which is giving advantage to 70% farmers, and we are happy about that. Thank you, Honorable Minister. I shall now put cut motion numbers 70, 71, 77, 8. 2 साल पहले खरीदा था, उसकी लागत आई थी 1800 रुपए से लेके 2100 प्रति क्विंटल। फिर आकर किसान को 1375 रुपया क्यों नहीं दे सकते? तो अपने आप पैदावार बढ़ा लेगा। आपने विदेश से गेहूं खरीदा 1800 रुपया प्रति क्विंटल, 21 में इसका स्पष्टीकरण। Thank you. बैठिए। Okay, thank you. I shall now put cut motion numbers 70, 71, 77, 84, 85, moved by Sri Prasanna Kumar Patasani to the demands for grants of the Ministry of Agriculture to the vote of the House. No, he has moved. The question, no, it is not withdrawn. The question is that cut motion numbers 70, 71, 77, 84 and 85 moved by Sri Prasanna Kumar Padasini be adopted. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the noes have it. The cut motions are negative. I shall now put the demands for grants relating to the Ministry of Agriculture to the vote of the House. The question is that the respective sums not exceeding the amounts on revenue account and capital account shown in the fourth column of the order paper be granted to the President of India out of the Consolidated Fund of India to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 2010. In respect of the heads of demands,
entered in the second column thereof against demand numbers 1, 2 and 3 relating to the Ministry of Agriculture. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The demands for grants relating to the Ministry of Agriculture are passed. I shall now put the demands for grants relating to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution to the vote of the House. The question is that the respective sums not exceeding the amounts on revenue account and capital account shown in the fourth column of the order paper be granted to the President of India out of the Consolidated Fund of India to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during year ending the 31st day of March 2010 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against demand numbers 16 and 17 relating to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The demands for grants relating to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution are passed.